this. मैंने Okay, so ladies and gentlemen, welcome back to your classes of ITN, and I hope that now you will be more punctual and you have the summer breaks, and during summer break you will be trying to learn as much as possible. That is a golden period for you. तो जितना भी आप लोग इसमें अपनी स्किल्स को इनहेंस कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली ड्यूरिंग दी क्लासेस टाइम मुश्किल हो जाता है, लेकिन इस टाइम पे इट बिकम इजियर कि आप ज्यादा से ज्यादा चीजें देख सकते हैं। हल्दो के कल मैंने आप लोगों के साथ एक और एरिया भी थोड़ा सा आपकी, क्योंकि मेरे इस कोर्स के पढ़ाने का हमेशा एक मकसद ही होता है कि स्टूडेंट का एक जायज गिला है कि जी हमें काउंसल नहीं किया जाता, हमें बताया नहीं जाता कि क्या हम करें, और लाजमी तौर पे उस वक्त करें जब हम पढ़ रहे हैं, बाद में करना बड़ा मुश्किल होता है। तो याद है मैंने कल आप लोगों के साथ क्या शेयर किया था? नहीं याद? मैंने आप लोगों के साथ ये शेयर किया था, रोड में स्क्रीन पे नजर आ रहा है ना इमन? तो ये भी जी बताया सर। था जी, नाइस। और ये भी बताया था कि ये ओपन ईडीजी क्या है, बल्कि इसी प्रॉब्ली ITN 7 से एक स्टूडेंट ने पूछा था कि जी ये ओपन ईडीजी क्या है। तो फिर मैंने बताया कि ओपन ईडीजी जो है, ये जैसे नाम से जाहिर है, इट इज एजुकेशनल एंड डेवलपमेंट ग्रुप, जो कि इंटरनेशनल वो रखता है, और ये मुख्तलिफ किस्म के ऐसे कोर्सेज करवा, और न सिर्फ ये कोर्सेज करवाता है बल्कि उसको एग्जामिन भी करता है, और जैसे सिस्को देता है अपनी सर्टिफिकेट्स, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज सर्टिफिकेट्स, ये भी देता है। तो यहाँ पे जस्ट एक एक एरिया को मैंने जस्ट आपके सामने प्रेजेंट किया था, एंड दैट इज दी पाइथन, और फ्रॉम द बिगिनर्स टू द एडवांस्ड। So it is telling you not all but some. मैं नहीं कहता कि सिर्फ पाइथन यहीं पे इस्तेमाल होता है। It telling you about the Python essential 1, 2, advanced 1, 2, then testing essentials with the Python, Python for unit testing, Python for automation, test automation, Python for security. That's a good. Then data analytics, machine learning, web development. So these are the few, only few way tasks, but very important, which if someone is important is interested in the programming part, that might be a good roadmap. Anyhow, I go back and I start with the, is there any question? No sir. No, sir. Okay. Then if there is no question, okay. तो हमारा जो टॉपिक चल रहा है, इट इज रिएक्टर 1, वो आपको पता है, दैट इज दी
ITN, course name is ITN, just to recall your memories. And the topic which or the chapter which you are taking is the physical layer. Physical layer. And you know already that this is the TCP/IP suite. Here is the physical layer. Here is the data link layer. Here is the network layer. Here is the transport layer. And here is the application layer. So basically we started from the physical layer. तो हमने कहा कि फिजिकल लेयर का एक काम जो है वो तो बिट्स को कन्वर्ट करना सिग्नल्स, सिग्नलिंग भी कह सकते हो, दैट इज एन इंपॉर्टेंट. एंड फॉर दिस वी हैव द इनकोडिंग टेक्निक्स, वी हैव द इनकोडिंग टेक्निक्स, वी हैव द इनकोडिंग टेक्निक्स. I hope you remember encoding techniques, like for example NRZ, NRZL, NRZL, maybe Manchester, maybe differential Manchester, maybe 4B5B, 4B5B, maybe 8B10B, वगैरह. So these are the different encoding techniques, but do remember that once you have selected a encoding technique for a system, it will be only utilized. ये नहीं कि आज ये कर लेते हैं कल ये कर लेंगे, not at all. The transceiver and the transmitter and the receiver only works with a is designed for a specific encoding technique. So the job is to convert the bits into signal and the signals back into the bits. So we have seen this, right? Then the second important part is the medium. Is the medium. Is it clear? Now, gentlemen, the job of this medium is to make the connection, because what is our topic? Networks. And the job of the network is communication, connectivity. Connectivity. This is the job of the networking. Simple. And for this connectivity, definitely we need some medium. And the medium can be guided or can be unguided. So if it is guided, it can be fiber, it can be copper, or it can be fiber. And in the copper part, as we have seen, it may be the TP, twisted pair, or it can be the coaxial, coax. And if it is the TP, it can be unshielded twisted pair, or it can be shielded twisted pair. Clear? Okay. और आपने ये के और इससे आप स्ट्रेट केबल भी बना सकते हैं और क्रॉस केबल भी बना सकते हैं, जो कि आपने ऑलरेडी सीख चुके हुए. क्लियर? फिर हमने कहा कि जी अगर कोएक्सियल में हमने देखा कि इट कैन बी थिक नेट and it can be thin net. Both can carry up to 100 megabit per second, but the difference is that thick net can go without an amplifier or repeater up to 500 meters, while the thin net can go up to 200 meters, more exactly 180 meters. Make sense? लेकिन नेटवर्किंग से तकरीबन ये कोएक्सियल आउट हो चुकी है. द रीजन इज, दुनिया का दस्तूर है कि जो भी अपने आप को अपग्रेड नहीं करता खत्म हो जाता. तो ये इसने भी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, यहाँ पे ही स्टक्ड है, जबकि इसके मुकाबले में हमारी जो टीपी है दैट हैज गॉन टू अप टू 10 गीग. तो जब 10 गीग कोई और दे तो हम ये क्यों इस्तेमाल करें? तो इसलिए, बट स्टिल वी हैव दिस मीडियम अवेलेबल. देन कम्स द फाइबर, and I may say very important. Why I am saying it very important? Because now, initially, 10 साल पहले, this fiber was considered to be only for the core. It means, gee, any question? Ladies and gentlemen, especially the online students? No? No, sir, clear.
ओके नाइस। तो कोर का मतलब है लॉन्ग हॉल, लॉन्ग हॉल, HAUL, इसको आप लॉन्ग डिस्टेंस भी कह सकते हैं। मिसाल के तौर पे यू वांट टू ज्वाइन वन सिटी टू अनदर सिटी, पिशावर टू लाहौर, पिशावर टू इस्लामाबाद, or one country to another country, like you want to connect, for example, Pakistan with India or Pakistan with Afghanistan. So yes, that was the considered to be the only solution at that time. But now, with the passage of time and with the advancements, and especially the traffic has increased too big, too more. मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको अपनी दिखाना चाहूं कि जी मैं कितनी ट्रैफिक, कितना मैंने इस मंथ में ट्रैफिक इस्तेमाल, कितना मैंने बिट्स या बाइट्स को इस्तेमाल किया, एंड आई गो हियर, ही इज शोइंग मी दैट विद इन लास्ट 30 days only me has taken 53 gigabytes here only. Even I use the mobile data as well. Even I use at home as well. So might be this number is more than 100 gigabytes, a single person. So what I want to get this at a very high speed. That is the reason this important medium now has reached to our home. And one of the example is, since long, even we should be ashamed of this, we are the prime department in the, मतलब प्राइम इस लिहाज से नहीं कहता कि जी हमारी खास खुसूसियत है, प्राइम इससे कहता हूं कि हम कंप्यूटर वाले हैं, हमें तो बहुत पहले ऑप्टिकल पे आ जाना चाहिए था, लेकिन टिल नाउ दिस डिपार्टमेंट वाज ऑन कॉपर, लेकिन नाउ वी आर फीलिंग कि जी ऑल्दो के जब आप ये फाइबर आपके इस साइड पे हो जाएगा और उस साइड पे नहीं होगा, तो फिर मैं चाहूंगा कि थोड़ी सी आवाज आपकी तरफ से उठे दोबारा कि जी उधर क्यों नहीं, तो जब आप कहेंगे कि उधर क्यों नहीं तो उधर भी हो जाएगा। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि फाइबर आपके लॉन्ग हॉल की बजाय अब शॉर्ट हॉल में भी आ गया, क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि नाउ योर डिपार्टमेंट विल बी कनेक्टेड विद 1 गीगाबिट पर सेकेंड, इवन क्योंकि पीछे 1 गीग से ज्यादा नहीं है, अदरवाइज वी कैन गो फॉर 10 गीग। तो अगर एक लैब के अंदर 10 गीग आए तो वहां तो आप अपना पूरा डेटा सेंटर बना सकते हो। बात समझ आ रही है ना? इज इट क्लियर एवरीवन? तो इसलिए मैं कहता हूं कि जी दिस फाइबर हैज बिकेम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन मीडियम। मेक सेंस? ओके, अब इसकी अगर हम थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करना चाहें, अगर हम थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करना चाहें, ओके, तो थोड़ी सी और एक्सप्लेनेशन करना चाहें तो मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस फाइबर से जो लाइट पास करती है, जिसको प्रोपेगेशन ऑफ लाइट कहते हैं, प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये एक्सप्लेन कर दिया था बिफोर योर एग्जाम्स, जिसमें मैंने बताया था कि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का फिजिक्स का फिनोमेना है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, क्रिटिकल एंगल याद आ रहा होगा, ये फिनोमेना इस्तेमाल करके लाइट एक दफा जब इंटर हो जाती है फाइबर में, तो हम नहीं चाहते कि वो फाइबर से एग्जिट करे, बल्कि अपनी डेस्टिनेशन के पास पहुंच के उसको एग्जिट करना चाहिए। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, व्हाट्स योर नेम जेंटलमैन? अब्दुल्ला। बात समझ आ रही मेरी? तो अब्दुल्ला हारून साहब, हम बात ये कर रहे हैं कि बाय यूजिंग दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन मैकेनिज्म, when the light enters into the fiber, it enter into the fiber, it will never go out of this boundaries, but it will only exit from here. That's the reason it has the least attenuation, and it can go
to the destination which is far away. Maybe for voice, there is no repeater or amplifier. Repeater is required even if one end is Peshawar, another end is Islamabad. And for copper, every 5 miles you need a repeater. Peshawar, Islamabad के दरमियान कितने माइल्स हैं? You can understand हर 5 माइल के बाद you need a repeater. और repeater का मसला ये होता है कि repeater is an active device, so you have to provide him power, maintenance and everything. बात समझ आ रही? तो इसमें पैकेट ड्रॉप नहीं होगी? किसमें? ये मैं ये नहीं कहता कि पैकेट ड्रॉप नहीं होगा. पैकेट मोस्टली ड्रॉप होते हैं डिवाइसेस पे, मीडियम पे ड्रॉप नहीं होते. इज इट क्लियर? ओके. फिर मैंने आपको बिफोर दिस, ये तो जस्ट रिकॉल कर रहा हूं आपकी मेमोरीज को, तो ये भी आपको बताया था कि ये फाइबर 2 चीजों से मिलकर बनता है या 3 चीजों से मिलकर बनता है. द सेंट्रल पार्ट इज कॉल्ड द कोर and outside part is called the cladding. Core and cladding. The central part is your core and outside part is your cladding. If this is your fiber, ये ना कहना आप मुझे कि जब ये फाइबर दिखा रहे हो तो ये तो इतना बड़ा नजर नहीं आ रहा. इसमें कितने फाइबर हैं? एक. ये फाइबर नहीं है जी. कितने फाइबर हैं इसमें? नजर आना भी चाहिए, बाहर नजर आ ही नहीं सकते. हम कभी भी इसको बाहर दिखाना पसंद नहीं करेंगे क्योंकि ये इतना बारीक है कि अगर इसको कभी भी यहां से पकड़े भी मार इस तरह इसको, क्योंकि ये फाइबर नहीं है. फाइबर होता तो मैं इसको कभी भी हाथ ना लगाता ही, क्योंकि ये इतना बारीक होता है कि ये आपके हाथ को डैमेज कर सकता है. सुई से भी बारीक है ना. तो फाइबर जिसमें ये 4 कोर है, इसके मतलब इसके अंदर 4 फाइबर. कितने फाइबर थे? 4 फाइबर. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ऑनलाइन वालों को तो नजर आ रहा है ना, मैं दिखा रहा हूं. और ये फाइबर इसलिए आज आपको बहुत सा दिखाई दे रहा है क्योंकि जैसे मैंने अभी कहा कि वी हैव डिसाइडेड येट कि जी वी शुड शिफ्ट फ्रॉम दी फाइबर, सॉरी फ्रॉम दी ट्विस्टेड पेयर टू दी फाइबर. तो ये भी एक कह सकते हैं कि लोग इससे ट्रेंड नजर आ रहा है कि वर्ल्ड इज गोइंग टुवर्ड द फाइबर. ठीक. ओके. फिर हमने कहा कि जी कोर और दरमियान में कोर और क्लैडिंग, और ये जो आपको फाइबर अभी मैंने दिखाया दैट इज ए ग्लास फाइबर. इट कैन बी प्लास्टिक एज वेल बट दिस इज ग्लास एंड दिस इज सिंगल मोड. although it can be multi-mode as well. It can be multi-mode as well. It is glass or it can be a plastic as well. Like this one is a plastic fiber. You can see on your screen as well. बात समझ आ रही? Okay. To some extent, yes. जैसे आपने अभी इसके साथ वो किया कि जी बिल्कुल उसको यूं करने की कोशिश की, और यही रीजन है कि स्पेशली आप लोग तो उसमें इन्वॉल्व भी हो. हम ये भी कर सकते थे कि इस तार को यहां से बाहर से, जैसे कि आम तार है आप गुजारते ही हो, हम इसको गुजार के ले आते ही. क्यों हम इसको डट लगा रहे हैं? क्योंकि किसी को भी अगर गुस्सा थोड़ा सा आ गया और वो शाम को थोड़ा सा यूं करके जाता रहे, तो इसको ये आम का, इसका अच्छी बात भी है लेकिन बुरी बात ये है कि इसको आप ये 2 तारों को यूं जोड़ नहीं सकते कि प्लायर ले लोगे, प्लास ले लोगे और उसको कहोगे कि जी एक फाइबर दूसरा फाइबर दा जोड़ योश. नो, इसको ज्वाइन करना इज ए एक्सपेंसिव वे. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, इसको इकट्ठा करना, ज्वाइन करने को क्या कहते हैं? स्प्लाइसिंग. तो और जब हम यहाँ पे 1-2 दिन में ये करें तो इट विल बी नाइस कि आप लोग उस वक्त मौजूद हो और एटलीस्ट देख लें, और बल्कि देखें नहीं, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको
थोड़ा सा टाइम दे दें कि आप खराब स्प्लाइस कर लो, कोई फर्क नहीं, लेकिन करो जरूर, ताकि एटलीस्ट आपको ये पता हो कि स्प्लाइसिंग मशीन क्या होती है और किस तरह उस पर स्प्लाइसिंग की जाए। एनीहाउ, जी, एनीवन फ्रॉम दी ऑनलाइन? एमन, काबरात, लाइबा, शायद, नईम, नासिर, राबिया, शैला, शैला तो यहीं पे है। तो ऑल ऑफ यू 7 पीपल ऑनलाइन, कोई क्वेश्चन है आपकी तरफ से? No, sir. ओके, No, sir. ओके, शायद, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्स फीडबैक। तो इससे ही पता चलता है कि फाइबर जो है वो एक इंपॉर्टेंट मीडियम बन चुका है। वो अब सिर्फ लॉन्ग हॉल में नहीं है, अब वो शहर के अंदर है। अगर मिसाल तौर पर आपका एक ऑफिस यूनिवर्सिटी में है, दूसरा हैदराबाद में है, still you will be happy to have the connected with a fiber and not with the copper or not with any other medium. तो इसका मतलब चाहे शहर के अंदर हो, चाहे शहर के अंदर हो, चाहे शहर से बाहर हो, चाहे आपके घर पे हो, दिस इज द गुड ऑप्शन। समझ आ गई जी? ओके, तो हमने कहा कि जी अभी हम ये क्योंकि स्लाइड शायद चंद महीने पुरानी है, और खुशी या बुरी जो भी आप कहें कि हमारा जो ऑप्टिकल, हमारा जो कम्युनिकेशन है, दैट इज चेंजिंग वेरी रैपिडली, दैट इज चेंजिंग वेरी रैपिडली। although ये कह रहा है नॉट एज कॉमन एज यूटीपी, बट नाउ इट इज बिकमिंग ए कॉमन, क्योंकि हर एक घर पे पहुंच चुका है। जो भी ये आप लोगों में से पॉन इस्तेमाल कर रहा है, व्हाट इज पॉन? पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क। तो आपके घर पे जो इंटरनेट आ रहा है, दैट इज थ्रू दिस पॉन। नाउ पैसिव ऑप्टिकल नेटवर्क, तो आपके घर में इसी वजह से इस केबल का नाम जो अभी मैंने आपके सामने फाइबर रखा, इस केबल को कहते हैं ड्रॉप फाइबर। इसको क्या कहते हैं? ड्रॉप फाइबर। क्यों इसको ड्रॉप फाइबर कहती है? क्योंकि कंपनी आपके घर पे ये फाइबर ड्रॉप कर जाती है कि ये लो का फाइबर, हमने अपना काम कर लिया, आगे आपका काम। इसीलिए इससे पहले जो पीटीसीएल केबल, वो काली सी केबल इस्तेमाल करती थी, उसको कहते थे ड्रॉप वायर, ड्रॉप वायर। नाउ दिस, उसी नाम से इसका नाम रखा गया है ड्रॉप फाइबर। तो हर घर तक ये पहुंच चुका हुआ है, दैट इज कॉमन नाम। फिर उसने क्या किया? आइडियल फॉर सम नेटवर्किंग सिनेरियोस, सम से मुराद वेयर एवर यू वांट हाई स्पीड, हाई कैपेसिटी, प्रॉब्ली दिस इज द ओनली सोल्यूशन। और कौन है जो इसकी तरफ नहीं, ये बात नहीं करता? एवरीवन वांट हाई कैपेसिटी। Then transmit data over longer distances and higher bandwidth than any other medium. Yes, जैसे मैंने भी कहा, इवन मैंने शायद आपसे पहले भी डिस्कस किया कि स्पेशली जो आपके समंदर में जो केबल जा रही होती है, दैट इज ऑलवेज ओनली एंड ओनली फाइबर। और मैंने आपके साथ एक प्रॉब्ली एक वो भी शेयर किया था, मुझे याद पड़ रहा है, जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि कौन कौन से ममालिक कौन कौन सी केबल्स के जरिए और कितनी कितनी उनकी कैपेसिटी है। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? हमने ये आपके साथ शेयर किया था। उसको कहते हैं सबमरीन केबल्स। क्या कहते हैं? सबमरीन केबल। तो आप ये देख सकते हो कि अगर मैं इसके इमेजेस में चला जाऊं, तो यू विल फाइंड हियर, या तो आप देख सकते हो, मैं इस डायग्राम में मोस्टली इंटरेस्टेड होता हूं। तो अगर मैं ये जो आपको मुख्तलिफ कलर्स दिखाई दे रहे हैं इस डायग्राम में, सबमरीन केबल्स, और आप स्पेशली मैं खुश हूंगा कि कम से कम पाकिस्तान को तो देख लो, बाकी ना भी देखो तो कोई मसला नहीं। यू कैन सी हियर यूर कराची पाकिस्तान, और किन किन केबल्स के जरिए हम कनेक्टेड हैं ये उन कलर वाइज दिखा रहे हैं।
ये सारा समंदर के अंदर है। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम हैं, ये साथ मुंबई, यहाँ पे चेन्नई, यहाँ पे सॉरी काबुल नहीं है, काबुल इज ए विदाउट सी, है ना। तो ये यूई है, यूई है, ये दोहा कतर है, ये देखते जाओ कि यमन है, सऊदी अरेबिया है, इजिप्ट है, लेबनान है, टर्की है। इन तमाम ममालिक जिनके पास समंदर है वो इसके इस अच्छी अपॉर्चुनिटी को कभी मिस नहीं कर सकते। तो अगर आप ये देखना चाहें कि जी कलर वाइज यहाँ देख लो कि कौन कौन सी केबल पाकिस्तान में लैंड कर रही है या हम उसके साथ कनेक्टेड हैं और उसकी कितनी स्पीड है, यू कैन सी हियर द बेस्ट वन इज आई मे से इज AAE1 which provide you 40 terabit per second। थोड़ा है ना, टेरा तो इतना बड़ा नहीं होता ना, क्या ख्याल है? टेरा इज 1000 बिलियन, तो ये 40 इंटू 100 बिलियन बिट्स पर सेकेंड। CMV5 24 टेराबिट पर सेकेंड। ये भी ब्लू भी आपको यहां नजर आ रही है, ये ऑरेंज जो भी कलर कहते हो क्या, दिस इज Pink. पिंक। चलो पिंक को देख रहे हो, येलो को देख रहे हो, ब्लू को देख रहे हो, ग्रीन को देख रहे हो। ये अगर ये येलो है तो फिर ये क्या है, ये आप लोग डिसाइड करो। Okay, so but you can see that we are connected to the world through different, that is CMV4, which is provide you 1.3 terabit per second, CMV5 24 terabit per second, AE1 40 terabit per second, and you can see all the world is connected to these। इसलिए तो हम कहते हैं कि फाइबर को इतना इंपॉर्टेंट मीडियम तो नहीं है, ये तो ऐसे ही हम उस पर डिस्कशन करना चाहते हैं। ऑल द वर्ल्ड इज कनेक्टेड थ्रू दिस मीडियम। क्लियर? और वो तो बता दिया कि आपके घरों तक भी अब ये पहुंच चुका है, आपके घरों तक। यही वो कह रहा है कि ट्रांसमिट डेटा ओवर लॉन्गर डिस्टेंसेस एट हायर बैंडविड्थ। अभी आपने देखा 40 टेराबिट पर सेकेंड, कितना छोटा सा रहा। एंड देन एनी अदर नेटवर्किंग लेस ससेप्टेबल टू अटेन्यूएशन। पहले कहा है कि अटेन्यूएशन इसमें बड़ी छोटी है, क्योंकि एक दफा जो सिग्नल इसमें चला जाता है वो बाहर नहीं निकल सकता, तो अटेन्यूएट नहीं होगा। दूसरी अच्छी बात, कंप्लीटली इम्यून टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एंड रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस। क्योंकि हमेशा हमारा गिला ऑप्टिक से कॉपर से ही होता है कि बाहर से अगर कोई भी इंटरफेरेंस आए तो वो हमारे सिग्नल को डिस्टर्ब कर देती है। ये तो लाइट है, ये तो इलेक्ट्रिकल है ही नहीं, तो दैट इज द रीजन इट डजंट हैव द इफेक्ट। फिर क्या कहता है, मेड ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सट्रीमली थिन strands of very pure silica glass। इतना थिन कि 5 का जो कोर है वो तकरीबन 5 to 9 माइक्रोमीटर का होता है, माइक्रॉन्स का होता है। 5 to 9 माइक्रोमीटर, माइक्रो तो समझते हो ना, बहुत बड़ा होता है, बहुत छोटा, इतना बारीक है। फिर अगर आपने सिंगल मोड फाइबर इस्तेमाल करना है तो यू विल बी यूजिंग द लेजर्स फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। द लाइट विल बी, इन अदर वर्ड आई से, लाइट विल बी जनरेटेड बाय द लेजर। You will place your information on the laser beam and the laser beam will be inserted into this fiber। और हम आपको जो कार्ड्स इंशाल्लाह अगली क्लास से पहले या जल्दी दिखा देंगे, that will be using the lasers। So laser will be taking your taking your information which is electrical, put it onto the laser and send it to the next hop। Good। और अगर मल्टी मोड फाइबर्स हो तो देन वी यूज दी एलईडीज के साथ तो आप खेलते रहते हैं ऐसे भी, light emitting diodes। Then the fiber optic cable acts as a waveguide to transmit
light between two ends with minimal loss. वेव गाइड किसे कहते हैं? अभी तो वो ऑफ हो गया होगा। एनी हाउ असद यहाँ पे है। असद कम्युनिकेशन लैब में देखो, अगर खुली है तो नहीं, एक 5 मिनट एक वेव गाइड में, वेव गाइड देखिए, उस बंदे को कह दो कि वेव गाइड चाहिए। अगर बंद हो तो आ जाओ, फिर मैं इस तरह समझा दूंगा। तो असल में वेव गाइड जो है दैट इज यूज फॉर वायरलेस कम्युनिकेशन। यहाँ पे ये नहीं कह रहा कि ये वेव गाइड है, ये कहते हैं एक्स ला के वेव गाइड। जैसे कि वेव गाइड लेकर जाती है, वेव गाइड लेकर जाती है सिग्नल को वायरलेसली, उसी तरह ये मीडियम लेकर जाता है लाइट को। तो एक्स ला के वेव गाइड को कहना चाहता है। तो अगर वेव गाइड आ जाती है तो वेल एंड गुड, नहीं आती तो मैं यहां से दिखा सकता हूं। आज का जमाना इज इम्पोर्टेंट। और वेव गाइड के मुख्तलिफ शेप्स होते हैं, मे बी रेक्टेंगुलर, मे बी स्क्वेयर, मे बी सर्कुलर। सो वेव गाइड, GUID, वेव गाइड्स, चले कोई बात नहीं। ये है जी वेव गाइड, जो कि अंदर से खाली होती है। अंदर से जैसे देखें इसमें दो बता रहा है, एक ये वेव गाइड जो कि रेक्टेंगुलर है, और एक ये वेव गाइड जो कि सर्कुलर है। तो ये नॉर्मली जो, अगर कभी मैं आपके साथ गया इस्लामाबाद का टूर पे, तो मैं कोशिश करूंगा कि लेक व्यू पार्क के अलावा हम थोड़ा सा टाइम अर्थ स्टेशन पे चले जाएं, और वहां पे आप ये रियली यूज होते हुए देखें कि किस तरह वेव गाइड्स कनेक्ट हो रहे हैं, विच आर कनेक्टिंग दी ट्रांसमीटर एंड रिसीवर्स देयर। बात समझ आएगा? तो मैंने कहा कि ये वेव गाइड ये है बेसिकली, लेकिन मैंने असल में वेव गाइड ये है, लेकिन हमारा फाइबर इस तरह एक्ट करता है। ये तो लेकर जाता है वायरलेस का सिग्नल, जबकि हमारा ये लाइट का सिग्नल लेकर जाता है। नॉट एन इशू। एनी क्वेश्चन? नो? एनी क्वेश्चन फ्रॉम दी पार्टिसिपेंट्स विच आर ऑनलाइन? जी समझ नहीं आएगा ये कहाँ पे होता है? ये मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि हफ्ते को ये खुले होंगे, मैं इनसे वेब गाइड उठा लूंगा, तो उस वक्त आपके हाथ में दे दूंगा, तो यू विल बी मोर कंफर्टेबल। ये जो आपके एंटेनाज होते हैं उनके साथ लगा के, या ट्रांसमीटर्स को इसको सिग्नल को उसमें भेजने के लिए एयर में वी यूज द वेव गाइड्स दैट इज यूज फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रांसमिशन। ठीक है, लेकिन क्योंकि आपको लोग इलेक्ट्रिकल नहीं है, इलेक्ट्रिकल में इसका कंप्लीटली सब्जेक्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, तो वहां पे दे आर यूज इन द कंप्यूटर साइंस वी, बिकॉज वी डजंट वर्क ऑन द फिजिकल लेयर, दैट इज द फिजिकल लेयर पार्ट। लेकिन आई विल शो यू, नो प्रॉब्लम। और मुझे याद नहीं था कि हम ये इसको देखेंगे, वरना मैं पहले से ही अपने पास रख लेता, लेकिन डजंट मैटर, कल भी हम इसको देख सकते हैं। फाइन जी। और मैंने कहा कि इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि दिस इज ए वेव गाइड, ये इट एक्ट्स लाइक ए वेव गाइड, एक्ट्स लाइक ए वेव गाइड, वेरी क्लियरली एक्ट्स लाइक ए वेव गाइड। बात समझ आ गई? ओके नाइस। फिर मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि फाइबर के एक अंदर और एक बाहर, और फिर उसमें प्लास्टिक कोटिंग। अल्दो इसकी कोटिंग इस तरह भी हो सकती है, ये भी फाइबर है, ये भी फाइबर है। इसके अंदर एक के अंदर 18, इस पूरी केबल के अंदर 18 फाइबर है। अगर मैं ये ज्यूम कर लूं कि एक फाइबर बहुत ही कम डालूं उस पर 1 टेरा, तो ये 18 टेरा ले जा सकती है। तो मैं पेशावर इस्लामाबाद के लिए इससे ज्यादा और मुझे जरूरत नहीं है, या पेशावर लाहौर के लिए मुझे इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। 18 टेरा किया। ओके, तो आपको मैंने जैसे बताया कि इस फाइबर में सिंगल मोड फाइबर भी हो सकता है और मल्टी मोड भी हो सकता है। लास्ट टाइम हमने बताया था कि स्टेप इंडेक्स भी हो सकता है और ग्रेडेड इंडेक्स भी हो सकता है। इन दोनों में फर्क ये बताया था, जो कि आपको थोड़ा सा भूल गया इसलिए रिकॉल कर रहा हूं कामरान, कि स्टेप इंडेक्स में ये होता है कि अगर आपकी लाइट इंटर होती है कोर में, ये कोर है ग्रीन फॉर एग्जांपल कोर है, और ये येलो जो है ये आपका क्लैडिंग है। लेकिन याद रखो कि ये दोनों एक ही मटेरियल है, सिर्फ इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, ये डेंसिटी डिफरेंट है।
बाकी ये नहीं है, ये तो सारा का सारा 5 से 8 माइक्रोमीटर है, और उसके ऊपर दूसरी तह जो है वो तकरीबन 125 माइक्रोमीटर की है। तो ये कोई अलग नहीं कि एक बनाया और फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग करा चाहिए है, नहीं, दैट इज वन, बट इनर को मोर डेंसिटी और वायबिलिटी डेंसिटी डिफरेंट है, बस दैट इज द डिफरेंस। क्लियर? सो तो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये आपका सिंगल मोड फाइबर और मल्टीपल मोड में क्या फर्क है अभी क्लियर करता हूं, लेकिन ये पहले क्लियर करता हूं कि स्टेप इंडेक्स और ग्रेड इंडेक्स में ये फर्क होता है कि स्टेप इंडेक्स में पूरे के पूरे कोर की जो डेंसिटी है वो फिक्स है, लेट करें D1, और इस बाहर वाले हिस्से की जो क्लैडिंग कहते हैं इसकी फिक्स है, मे बी D2। तो एकदम जंप लगी इस जगह पे, इस बाउंड्री पे एकदम जंप लगी फ्रॉम D1 टू D2, इसलिए इसको स्टेप इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि जब आप नीचे अभी उतरेंगे तो स्टेप से जब नीचे उतरते हो तो एकदम आपकी हाइट 1 फीट कम हो जाती है, जो ही दूसरे स्टेप पे पांव रखते हो एकदम आपकी हाइट जो है 2 फीट कम हो जाती है। दैट द रीजन यहां पर भी आपका जो डेंसिटी है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, सडनली चेंज हुआ, दैट द रीजन इट इज कॉल्ड स्टेप इंडेक्स। जी, एनी क्वेश्चन? तो होता क्या है कि जब रे एकदम यहां पे आएगी लाइक दिस, इट विल बी रिफ्रैक्टेड बैक, रिफ्लेक्टेड नहीं कह रहा, रिफ्रैक्टेड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन लाइक दिस, तो इसको कहते हैं स्टेप इंडेक्स फाइबर। जबकि ग्रेडेड इंडेक्स का ये होता है कि आपकी अगर ये आपकी अब येलो पोर है और आपकी रेड जो है वो क्लैडिंग है, ठीक है, समझिए? तो यहां पे जो ये डेंसिटी है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होती है, एकदम नहीं। जैसे मैं दोनों की एग्जांपल यूं देता होता हूं कि जैसे ये अभी आपको मैंने स्टेयर्स की एग्जांपल दी, तो शैला हमें इसकी एग्जांपल क्या देती होती है, जो आप किसी बाग वगैरह में जाते हैं तो स्लाइड होती है ना, तो स्लाइड कैसे होती है, यूं आप उसमें अगर चढ़ते हैं या उतरते हैं, दैट इज ग्रेजुअल, ग्रेजुअल इंक्रीज या ग्रेजुअल डिक्रीज। तो यहां भी डेंसिटी इज डिक्रीजिंग और इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, इसलिए रे ऑफ लाइट नेवर गोज लाइक स्ट्रेट, बट इट इज हर टाइम इट इज चेंजिंग, तो इट इज लाइक दिस, the ray of light moves like this, so this is called graded index. But we are mostly interested in single mode and multi mode. सिंगल मोड में जो इंपॉर्टेंट आइटम है जिसको आप SMF भी लिखते हैं, SMF सिंगल मोड फाइबर, और मल्टी मोड फाइबर है तो यू नो इट इज MFF, मल्टी मोड फाइबर, M फॉर डबल M, मल्टी मोड फाइबर। सो लेडीज जेंटलमैन, सिंगल मोड में ये होता है कि इसका कोर इतना छोटा होता है, इतना बारीक, जिसे मैंने भी कहा अप्रोक्सीमेटली 5 to 8 माइक्रॉन्स, जिसे टेक्निकल टर्म्स में अब्दुल्ला क्या कहते हैं, माइक्रॉन्स, विच इज माइक्रोमीटर। तो ये इतना कम होता है कि इसमें एक ही वेवलेंथ ट्रेवल करता है, तो एक वेवलेंथ इट सीम्स लाइक दैट इज मूविंग स्ट्रेट, हाउ इट मूव्स समथिंग लाइक दिस। अगर आप इसको बड़े उस पर करके इनलार्ज करके देखें तो इट इज लाइक दिस, बट सीम बिकॉज इट इज कैरिंग द सिंगल वेवलेंथ, मे बी λ1, जबकि इट कैन कैरी मल्टीपल वेवलेंथ साइमल्टेनियसली, इसलिए आपको देखें मल्टीपल वेवलेंथ नजर आ रही, बट मोर डिस्पर्जन, दैट द रीजन शॉर्टर डिस्टेंस। इवन आप तो कि ये काम आप लोगों का था कि डिसाइड, मैंने आप लोगों को कहा था कि डिसाइड करो कौन सा फाइबर इस्तेमाल करोगे, आपका काम था कि आपने बताना था कि सिंगल मोड या फाइबर, लेकिन आई वेंट फॉर द सिंगल मोड फाइबर हियर बिकॉज इट प्रोवाइड्स बेटर स्पीड। और सबसे अच्छी बात ये थी कि बैकएंड पे भी जो फाइबर मैंने इस्तेमाल किया वो सिंगल मोड है, तो मैं भी क्यों ना सिंगल मोड इस्तेमाल करूं और आगे जब
क्लियर है? समझ आ गई रफी? तो मल्टी मोड क्यों नहीं किया? मल्टी मोड में जब मल्टीपल वेवलेंथ होती है तो देर इज ए, जैसे आपको यहाँ पे नजर भी आ रहा है, देर इज चांस दैट द टू विल इंटरफेयर, टू वेवलेंथ विल इंटरफेयर विद वन अनदर। वेवलेंथ का क्या मतलब है? वेवलेंथ से मुराद क्या है? वेरी गुड। हम रेडियो में, रेडियो से मुराद वो नहीं, रेडियो से मुराद वायरलेस, उसको हम कहते हैं रेडियो कम्युनिकेशन है। वायरलेस में वी टॉक अबाउट द फ्रीक्वेंसीज। जैसे मैंने आप लोगों के साथ लैब ली थी, तो सारी की सारी डीएसपी की लैब में आई वाज टॉकिंग अबाउट दी, मोस्टली अबाउट द फ्रीक्वेंसीज, कि जी ये आपकी वॉइस है, इसमें फ्रीक्वेंसी F1 है, इसमें फ्रीक्वेंसी F2 है, F3 है, ब्ला ब्ला, रिमेंबर? जबकि ऑप्टिकल में, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ फ्रीक्वेंसी की बात हो चुकी थी, उन्होंने लैब कम्युनिकेशन उन्होंने भी करनी थी, दे इंस्टेड ऑफ टॉकिंग द फ्रीक्वेंसीज दे टॉक अबाउट द वेवलेंथ, and they lambda 1, lambda 2, lambda 3 and so on, and you know lambda is equal to c by f, and c is a constant. इसके मतलब they are the related terms. लेकिन इन्होंने उनकी टर्म, रेडियो वालों की टर्म इस्तेमाल करने की बजाय, रेडियो वालों की टर्म इस्तेमाल करने के बजाय दे टॉक्ड अबाउट दी, तो वहां मैं कहता था कैरियर एफ सी, यहां मैं कहूंगा कैरियर लैम्डा सी। यहां मैं कहूंगा जी आपकी वॉइस में लैम्डा 1 है, लैम्डा 2 है, लैम्डा 3 है, F1 F2 F3 नहीं कहूंगा ऑप्टिकल डोमेन में। मेक सेंस? जी एनी क्वेश्चन? अब्दुल्ला जी। तो ज्यादा वेवलेंथ मतलब डिफरेंट वेवलेंथ एट अ टाइम जाती है, तो इसका मतलब है कि डिफरेंट सिग्नल्स एट अ टाइम जा रहे हैं। बिल्कुल, हम यही अभी भी ये करते हैं, हम इस सिंगल मोड फाइबर में भी मल्टीपल वेव लेकर जाते हैं, और वो किसके जरिए लेकर जाते हैं आपको पता है? मल्टीप्लेक्सिंग। और उस मल्टीप्लेक्सिंग को कहते हैं WDM, वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। क्या कहते हैं? वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। हाउएवर हम इसको DWDM भी कहते हैं, डेंस वेव डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। माशाल्लाह, अगर इसके अंदर 18 फाइबर हैं, हर फाइबर, मैंने अगर कहा कि जी वो, अगर वो एक वेवलेंथ, अगर लेट करो एक वेवलेंथ 10 गीग ले जाता है, तो इसके ऊपर मैं 100 वेवलेंथ ले जा सकता हूँ एक फाइबर के ऊपर। मैं 100 वेवलेंथ को इकट्ठा कर लूंगा, किस तरीके से? इस तरीके से, मल्टीप्लेक्सिंग के तरीके से। तो मेरा एक फाइबर 10 into 100 विच इज टेरा, इसलिए कहते हैं टेरा ले जा रहा है एक फाइबर। कुछ बात समझ आ रही? क्लियर? सो देन इज दी, कहां कहां ये इस्तेमाल हो रहा है? तो अभी हमने बात की है, अभी आपने इसको समुद्रों में भी देखा है, ठीक है ना? चाहे अटलांटिक ओशन हो, कि पैसिफिक ओशन हो, कि रेड सी हो, हर जगह से ये गुजरा हुआ है। आप जैसे इंजीनियर्स ने वहां तक उसको पहुंचाया है। देन मैंने भी कहा लॉन्ग हॉल है ना, लॉन्ग हॉल, एक पिशावर, दूसरा में भी कराची, एक पिशावर पाकिस्तान, दूसरा एंड में भी यूएई, लॉन्ग हॉल। देन मैंने कहा आज जमाना, पहला था फाइबर टू द कर्ब, फाइबर टू द बिल्डिंग, FTTB। मिसाल तो डीन प्लाजा है, अब वहां तक एक फाइबर, क्योंकि एक फाइबर तो मे बी 10 गीग ले जा रहा है, वहां तो 10 गीग की जरूरत नहीं है, तो ये मे बी है, कोई बड़ा सॉफ्टवेयर हाउस है, वो कहता है हो ठीक है, नहीं है तो बिल्डिंग तक पहुंचाओ, और वहां से आगे इसको आप उसमें कन्वर्ट करके इलेक्ट्रिकल में मुख्तलिफ कस्टमर्स को दे दो। ठीक है अब्दुल्ला? ठीक है सुमैया? देन इज दी, तो ये तो हो गया बिल्डिंग। कर्व का मतलब ये होता है
कि आपके घरों के आसपास तक इसको फाइबर को पहुंचाया जाता है। माइट बी यू हैव सीन दी, स्पेशली अनफॉर्चुनेट है लेकिन है, रियलिटी है कि पीटीसीएल के आपको कुछ बड़े बड़े बॉक्सेस कह लो, वो आपको आपके घरों के आसपास कहीं दिखाई देते हैं, जिसको हम सैक कहते हैं, एम सैक, जिसका काम होता है कि उस तक ऑप्टिकल आ रहा होता है, एक्सचेंज से उस बॉक्स तक ऑप्टिकल आ रहा होता है, वहां पे उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके कॉपर के जरिए आपके घरों तक पहुंचा दिया जाता है। दिस इज कॉल्ड फाइबर टू द कर्व, एफटीटीसी, एफटीटीसी। लेकिन अब का जमाना यह है कि आप कहते हो ना फाइबर का जमाना कोरता बरस से, फाइबर टू द होम, जिसे मैंने भी कहा ड्रॉप फाइबर आपके घर पे पहुंचा दिया गया है। और आपको पता है कि पीटीसीएल क्या कहता है, वी डोंट हैव द पॉन, वी हैव द जी पॉन, गीगाबिट पॉन। मेक सेंस? सो द फाइबर इज बीइंग लाइन पे, जब जी है तो फिर कोई और नहीं ले जा सकता जी को मां सिवाय फाइबर। इसके अलावा इंटरप्राइज नेटवर्क्स, क्या होता है इंटरप्राइज नेटवर्क अब्दुल्ला? चला, लार्ज नेटवर्क्स, जैसे मिसाल के तौर पे पीटीसीएल का नेटवर्क है पाकिस्तान में, दैट इज एन इंटरप्राइज नेटवर्क। नयाटेल है, इंटरप्राइज नेटवर्क है। मोबिलिंक है, यूफोन है। अल्टो के आपको तो लगता ही है कि दे आर वायरलेस, ऐसे ही लगता है ना, लेकिन अगर आप वाकई इंजीनियर हो तो सिर्फ वायरलेस आपके इस टावर तक है, आगे तो सारा फाइबर है। सिर्फ इस टावर तक आपकी मोबाइल वायरलेस है, उसके आगे तो डेफिनेटली फाइबर है। तो इंटरप्राइज नेटवर्क्स में भी केबलिंग के लिए व्हाट टाइप ऑफ मीडियम यू आर यूजिंग इन एंटरप्राइज नेटवर्क्स? ऑप्टिकल फाइबर। तो अगर ये चार में आपने रख लिया तो कोई जगह रह गई है जहां पे ये नहीं है? कोई ऐसी जगह है जहां पे ऑप्टिकल फाइबर फिर हम कह देंगे नहीं यहां पे ऑप्टिकल फाइबर नहीं है? इट इज रफली एवरीवेयर ना। ठीक है? सो देन कम्स दिस वन, कनेक्टर्स। जिस तरह के हर एक मीडियम के लिए स्पेसिफाइड कनेक्टर होते हैं, ऑप्टिकल के लिए भी लाजमी तौर पे कनेक्टर होने पड़ेंगे। ऐसे ही है ना? जैसे मिसाल के तौर पे, क्या आपने यूटीपी के कनेक्टर नहीं देखे हुए? दिखा सकती है? वहां पे उसके भी पड़े हुए हैं, कोएक्सियल के। नहीं है तो केबल ले आना, उसके साथ भी कनेक्टर लगा हुआ है। सो these connectors are, every type of medium need a connector। आप जैसे कि मिसाल के तौर पे जब आप नीचे स्विच के साथ लगाएंगे और ऊपर के स्विच के साथ लगाओगे तो दोनों एंड पे कोई कनेक्टर नहीं होगा। तो यहां पे हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी फाइबर ऑप्टिक कनेक्टर्स, जिसमें वन टाइप इज
ये देखना चाह रहे हैं every type of medium requires a connector, no option. मिसाल के तौर पे what we are looking at the screen now, T connectors, it can be the BNC connectors where they are used, optical, sorry, coaxial. Here is again we are showing you the coaxial, coaxial, and the connectors are here. So, and here you can see the, thank you very much. Here you can see the your well-known RJ45 connectors. RJ45 connectors. So, ladies and gentlemen, you know that every medium requires connector. इसमें हमें अब शक की वो नहीं रही. Now I can show you, ladies and gentlemen, we have the connectors here as well. This is again an optical. Here you can see one of the connector type on the screen, and here as well. This is the connector. So you can plug it into the device, and this type of connector is called straight tip because the tip straight है. ST connectors. इसके मुकाबले में if you want to see this one, अगर अकेले में देखो और फिर इसको दो में इकट्ठा कर दूंगा, this one, this is the SC, subscriber connector. They can mostly one for trans, one for receive. That's the reason you are looking at here. इसलिए मैंने कहा था कुछ देर पहले कि इस फाइबर के अंदर 4 फाइबर हैं. एक आपका डेटा लेकर जाएगा, एक आपका डेटा लेकर आएगा. आप भी तो रिक्वेस्ट भेजते हो ना, और मिसाल तो आप लिखते हो www.facebook.com, facebook.com पे पहुंच जाओगे तो आपके कुछ जाना है तो वो एक फाइबर पे जाएगा और दूसरे फाइबर पे जो आप लिखोगे वापस आएगा वो आपकी तरफ आएगा. ये में फाइबर से कर सकते हैं दोनों का हम एक फाइबर से कर सकते हैं? नहीं करते. कर तो सकते हैं कि आधे आधे को, लेकिन नेवर आई हैव सीन. ऑलवेज one fiber for trans and other one is for the receive. जी, तो इसमें से अगर ये मैं सोच रहा था, एक ऑप्शन मेरे पास ये है कि मैं 2 फाइबर इस्तेमाल करूं और 2 फ्यूचर के लिए छोड़ दूं. दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये है कि नहीं, मैं दो कनेक्शन लेकर आऊं, 2 ट्रांस के लिए, 2 रिसीव के लिए. तो 2 कनेक्शन लेकर आऊं, फिर मुझे यहाँ पे 2 कनेक्शन भी चाहिए. मर्जी है मेरी, बल्कि इसमें इस वक्त तो मर्जी मेरे हाथ में नहीं है. जो भी डिजाइनर है उन्होंने डिजाइन करना है, जो भी दे हैव टू डिसाइड व्हाट दे वांट, बट दे हैव टू टेल मी, देन अकॉर्डिंगली आई हैव टू बाय दी इक्विपमेंट. ठीक है, तो इनको आपने इन्वॉल्व किया उसमें डिजाइन काम में, ये खामोश रहे? नहीं सर, कल गए थे जगह वगैरह दिखाई. तो बाकी चीजों पे भी अपनी डिसीजन जल्दी से आज के दिन में पूरा करो ताकि हम जल्द अज जल्द अपने इक्विपमेंट और ये चीजें खरीद लें. एनीहाउ आई विल शो यू, जब हम खरीद लेंगे तो हम आप उसकी पिक्चर वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे ताकि आप लोग देख सकें. तो टू शो यू जस्ट लेडीज एंड जेंटलमैन दैट वी हैव दी, अगर मिसाल में एक होगा तो दैट इज सिंप्लेक्स, यू अंडरस्टैंड, फिर सिर्फ आएगा. और अगर आप 2 रखेंगे तो इट इज डुप्लेक्स. इट कैन बी, याद रखो कलर से भी आपने एक चीज ख्याल रखनी है. एक इसमें आई डोंट नो व्हाट आई शुड कॉल इट, ब्राउन, ऑरेंज एंड येलो. देन इसी तरह ये व्हाट यू आर लुकिंग एट हियर इज द फर्स्ट वन ऑन योर स्क्रीन. This is orange, and always orange is a multi-mode patch cord. Multi-mode. इसका मेरे पास yellow भी है. That will be then called as the single mode. This is again, you can see here, the first on your screens, the orange one. The orange one. It means this is a multi-mode patch cord. पैच कार्ड किसे कहते हैं?
एंड नोड के साथ जब आप किसी कनेक्टिविटी लेना चाहते हो तो यूज दी एंड। जिस तरह आप एक शॉर्ट केबल बना लेते हो और वहां से एक लगाते हो, दूसरे डिवाइस के साथ लगा देते हो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, तो वी कॉल इट पैच केबल बिकॉज इट इज ए कॉर्ड विद फाइबर, वी कॉल इट पैच कॉर्ड। बात समझ आ गई? नाइस। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि आप सिर्फ चीजें वो नहीं कर रहे, गुजार नहीं रहे, बल्कि आप देख रहे हैं, तो विच मीन्स satisfactory. Then is the, ladies and gentlemen, the last slide probably of this medium. We want to compare. Why? Definitely because why people are going for the fiber from the twisted pair. कोई रीजन तो होगा। अल्दो के ये स्लाइड पढ़ के आपको शायद फील हो कि ट्विस्टेड इज गुड, नॉट बैड, लेकिन when you want to have, the major thing is high capacity, no other option. तो सबसे पहले कहता है कि bandwidth supported twisted pair can go up to 10 gig while the fiber optic can go up to 100 gig, 10 times faster. Then distance में up to 100 meter twisted pair, 100 kilometer, 100 kilometer is something like Islamabad, वो तो straight जाएगी ना। Then if you talk about the radio frequency and interference, the electromagnetic are, because there is a light, so it is completely immune, while यहाँ पे खतरा है, इफेक्ट होगा। Then कोई अगर इलेक्ट्रिक हैजर्ड है, completely immune, आता रहे इलेक्ट्रिक हैजर्ड, वी डोंट केयर। फिर हमने कहा मीडियम एंड कनेक्टर कॉस्ट, to some extent now it is little expensive, may I say, I will not say the highest, it is not highest, और जितना जितना इसकी यूज ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी, the cost will go down, तो not an issue। ना तो मांग तो सकते हैं ना, हमने तो मांग के रखी हुई है। ओके, देन इज दी इंस्टॉलेशन स्किल्स। ये चीज है कि यहाँ पे वो मामा और सुमैया को थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। जैसे कि अभी इन्होंने बताया कि 2 से 3 साल पहले इन्होंने कितने स्प्लाइस कराए, एक 6,000 रुपए दिए। ये तो मालदार लोग हैं, हम तो गरीब हैं, हम तो नहीं, हमें तो 6 करवाने हैं और हमारे पास 6 के लिए भी 6,000 रुपए नहीं है, तो हम मुफ्त में कराएंगे। तो इंस्टॉलेशन स्किल का इज गुड, लोगों के पास नहीं है तो इट्स गुड कि आप करें। हाँ, प्रिकॉशंस पे आपने केयर करनी, मैंने कहा कि इतना बारीक है कि क्योंकि आपको पता है कि अगर कुछ चीज आपकी बॉडी में चली जाए तो इट देन मूव्स, तो वो नहीं करना कि कभी हाथ से उसको ये करना शुरू कर दो। टेक केयर। देन कम्स दी वायरलेस लिंक। यहां पे कंपैरिजन बनता है, बाद में जब पढ़ा लूंगा तो कंपैरिजन करने में इंटरेस्टेड होऊंगा। I think Rabia is here, लेकिन her friend Rabia, Marwa is here and Rabia is here. Marwa, Rabia कहाँ गई? नहीं, Rabia भी है, Rabia is also here. Nice. Rabia समझ आ रही है? Rabia and Marwa, you are new. Are you understanding? Are you feeling any problem? स्पेशली मेरी हमेशा रिक्वेस्ट ये होती है कि पहले तो फिजिकल आए, और अगर फिजिकल नहीं आ सकते, ऑनलाइन आना, तो एटलीस्ट एक माइक अपने पास रखें ताकि आपका क्वेश्चन मेरी तरफ जल्दी से पहुंच जाए और मैं आपको जल्दी से उसका जवाब दे सकूं। तो लेकिन अगर फिर भी देयर इज सम प्रॉब्लम, क्योंकि मरवा एंड राबिया आर न्यूअर, यू कैन टाइप योर क्वेश्चन हियर। ये नहीं कि सिर्फ सुनने पे मजबूर है, इतनी ज्यादा वो नहीं है, मजबूरी नहीं है। यू कैन राइट एंड आई विल रिस्पॉन्ड यू। ठीक है? Anyhow, what about you, Laiba? Are you getting? Are you understanding? कामरान, हेमन, देखिए जल्दी से उसने लिख दिया क्योंकि वो पहले से एक्सपर्ट है ना, लेकिन उसने लिख दिया यस सर। जी सर। थैंक यू हेमन।
तो राबिया और आप भी अपना कोई भी क्वेश्चन हो, मेरे ख्याल राबिया ने भी बोला है, मुझे आवाज आई है, राइट राबिया? ओके, सो वी कंटिन्यू जी, ताकि ये सिर्फ आप लोगों को इन्वॉल्व करने का मकसद होता है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक वक्त में एक सोच थी कि देयर विल बी एक वॉर बिटवीन वायरलेस एंड ऑप्टिकल। बल्कि मेरा अपना एक फ्रेंड था, मैं क्योंकि ऑप्टिकल पे काम कर रहा था और वो वायरलेस पे काम कर रहा था, तो पूछता रहता था कौन फ्यूचर में, आज से 10 साल बाद, 5 साल बाद, कौन, वो कह रहा दिया, कौन कौन सा मीडियम कामयाब होगा, कौन सा आगे बढ़ेगा। तो उस वक्त भी मेरा ख्याल ये था, और शायद ट्रू था, कि वायरलेस वहां पे काम की जरूरी है जहां पे आपको मोबिलिटी चाहिए, चलते फिरते आप कनेक्टिविटी चाहते हो, वहां आप मजबूर हो फॉर वायरलेस, अदरवाइज ऑप्टिकल। मैं नहीं समझता कि डेटा डेटा इवन 3G 4G आप लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसकी सेटिस्फेक्शन नहीं होती। सिर्फ मजबूर क्या है कि घर पे हूं तब भी कनेक्टेड हूं, रोड पे हूं, स्कूल में हूं, कॉलेज में हूं, यूनिवर्सिटी में हूं, जहां भी हूं, इवन एरोप्लेन में हूं, मैं कनेक्ट हूं। ये चीज ऑप्टिकल नहीं कर सकती। बाकी ऑप्टिकल ऑप्टिकल जहां भी आपको हाई स्पीड चाहिए, हाई कैपेसिटी चाहिए, मोबाइल वायरलेस उस जगह तक नहीं पहुंच रहा। ऑल्दो मैं ये नहीं कह रहा, इसकी खामी नहीं कर रहा, दैट इज ऑल्सो एडवांसिंग एट ए वेरी फास्ट फास्ट पेस। एक वक्त था प्रॉब्लम 90s में, जब जीएसएम के ऊपर, जीएसएम का नाम सुना, 2G, जो आपका सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल नेटवर्क आज भी इस्तेमाल हो रहा है, विच इज ए स्टैंडर्ड फ्रॉम ITC, स्टैंडर्डेशन बॉडी है जीएसएम। यू नो, इट वाज प्रोवाइडिंग 9.6 किलोबिट पर सेकेंड। इसके मुकाबले में 4G इज गिविंग अराउंड 100 मेगाबिट पर सेकेंड। 4G तो इतना बड़ा इंक्रीज तो नहीं है ना, 10 है 10 भी नहीं, 1000 को किलो से मेगा हुआ है, और 9-10 यहाँ पे 9-10 कह लो, 10 से 100 हुआ है, तो 10 टाइम तो यहाँ है और 1000 टाइम यहाँ है। तो मैं ये नहीं कहता कि इन्होंने अपनी, अगेन मैं बार बार कहता हूँ, अपनी जिंदगी में भी याद रखना कि जहां पे आपने अपनी एडवांसमेंट को नजरअंदाज कर दिया, बस समझे कि उस दिन से डिक्लाइन शुरू हो गया। और अच्छी एग्जांपल अभी मैंने आपको इसको एक्सेल की दी है, वरना अच्छा मीडियम, लेकिन ये गीगास पे नहीं गया, टेरास पे नहीं गया, तो लोगों ने छोड़ दिया। ओके, तो यहाँ पे ये एक इस एग्जांपल से रियल एग्जांपल से ये चीज क्लियर किया कि वायरलेस इज इंपॉर्टेंट, इज आल्सो इंपॉर्टेंट, स्पेशली व्हेन द यूबिक्विटी और मोबिलिटी इज डिजायर। यूबिक्विटी का मतलब होता है अवेलेबल एवरीवेयर, ठीक है। आप कहते होंगे कि जी सेलुलर भी तो हर जगह नहीं है, कह सकते हो, कहने में क्या हर्ज है। इवन आप अपने जहाज में बैठते हो, जो ही जहाज में बैठते हो, देयर इज नो सेलुलर देयर। जो ही जहाज फ्लाई करता है, इसलिए वो कहते हैं कि इसको एरोप्लेन मोड आपके स्पेशल आपका मोबाइल में होता है या वायरलेस में होता है, इसका मतलब बंद कर दो इसको, क्योंकि वहां नहीं है सेलुलर। छोड़ोगे तो जो ही वहां उतरोगे ड्रेन हो चुका होगा। ड्रेन का मतलब बैटरी खत्म हो चुकी होगी, खराब नहीं, खत्म। यानी यहां से 100 पे चार्ज करके जेब में डाल लो, जहाज में बैठ जाओ, जो ही यूएई में उतरोगे तो देखोगे कि ये तो जी 10% रह गई है,
मैं एग्जैक्ट नंबर नहीं कह रहा, डिपेंड्स। ठीक है, क्यों शैला? क्वेश्चन ये पूछ लेंगे क्यों? ठीक है, वन ऑफ देम इज आल्सो द मोबाइल। वो इसलिए कि भाई वहां पर भी स्पेशली देयर द कम्युनिकेशन बिटवीन दी, जैसे आपने कहा द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड कि जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होती हैं उनको कहा जाता है कि जी जब जहाज पे बैठ गए तो बंद कर दो। द रीजन इज देयर इज कम्युनिकेशन बिटवीन द एरोप्लेन एंड द ग्राउंड कंटिन्यूसली, इट माइट अफेक्ट। तो अगर आप उसमें इंटरफेयर कर गए और वो हो गया तो सम डेंजरस, क्योंकि बाज जगहों पे जो स्पेशली नियर फ्यूचर है उसमें इसको जमीन से कंट्रोल किया जाएगा। अभी आप पायलट को वो इंस्ट्रक्शन देते हैं और पायलट उस पे ऊपर आगे एक्ट करता है कि इस डायरेक्शन में मुड़ जाओ, इस स्पीड पे जाओ, इस हाइट पे जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, वगैरह वगैरह। So this communication may not be affected. That's the reason all the wireless devices must be turned off. क्वेश्चन मैंने ये नहीं किया, क्वेश्चन मैंने ये किया कि उसकी वो क्वेश्चन उसने ये बंदे नहीं किया, मैंने, मेरी भी गलती नहीं है। वो कहता है वो की पावर क्यों ड्रेन कर जाएगी, क्यों बैटरी कंज्यूम हो जाएगी। अगर ना लाओ, इन्हें ऑन रखो, इन अदर वर्ड्स एरोप्लेन मोड का मतलब है कि आपने उसके सेलुलर को बंद कर दिया है, उस इंटरफेस को डाउन कर दिया इन शॉर्ट, क्योंकि वो कंटिन्यूसली बीटीएस को ढूंढेगा। वो बेस स्टेशन को या नोड बी को कंटिन्यूसली, तो आप 3 घंटे ट्रेवल करोगे वो 3 घंटे ढूंढता रहेगा, नहीं मिलेगा भेजेगा भेजेगा भेजेगा, आप सोई रहेंगी वो भेजता रहेगा, तो अपनी बैटरी जाया कर देगा। इसलिए बेहतर है बंद कर दो, क्योंकि बीटीएस तो नहीं मिलना ऊपर उसको, या नोड बी तो उसको ऊपर नहीं मिलना। मेक सेंस? ओके, द क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड बाय सुमैया कि जी नोड बी या बीटीएस क्या होता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर ये आपका मोबाइल सेट है तो आपने देखा होगा कि यहां पे आपका टावर कहीं लगा हुआ है ना। इस टावर के साथ एक प्यारा सा बॉक्स लगा होता है मोस्टली, जो कि आपके सिग्नल को जो यहां रिसीव होता है उस सिग्नल को कन्वर्ट करता है या प्रोसेस करता है और उसको आगे, इसको कहते हैं, अगर ये जीएसएम है तो इसको कहते हैं बीटीएस, और अगर ये 3G है तो इसको कहते हैं नोड बी। इसके आगे फिर अगर ये मैं ऊपर जो लिख रहा हूं ये जीएसएम के लिए है, इसके आगे एक डिवाइस होता है जो कि बहुत सी बीटीएस को कंट्रोल करता है, जिसको कहते हैं बीएससी। ये नहीं कहना मैंने बीएससी करते हुए 1 साल रह गया। तो दिस इज द कंट्रोलर, बेस स्टेशन कंट्रोलर, विच इज कंट्रोलिंग मेनी बीटीएस। मे बी एक लगा हुआ है मे बी यूनिवर्सिटी में, दूसरा लगा हुआ है तहकाल में, ये दूसरा बीटीएस है, तीसरा लगा हुआ है मे बी केएफसी के पास, तीसरा बीटीएस, एंड ऑल आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय दिस बीएससी। ठीक है, तो जब आपका डिवाइस यहां पे है तो ये अब ढूंढता है कि कोई बीटीएस यहां पे है ताकि मैं उसके साथ कनेक्ट हो जाऊं। बात आप कहते हैं ना सिग्नल निष्ठा, इसका मतलब आपको बीटीएस नहीं मिल रहा, आपके आसपास बीटीएस नहीं है मिसाल के तौर पे, लेकिन आप जो ही बाहर गेट पे चले जाते हैं तो मिल जाता है, वहां पे आपको बीटीएस आपके करीब है। बात समझ आ रही है? तो क्योंकि एरोप्लेन में वहां तो बीटीएस का तस्वर भी नहीं किया जा सकता, क्योंकि आप तकरीबन 40,000 फीट ऊपर होते हैं, तो 40,000 फीट पे जो गुलाजी प्लाजा पे टावर लगा हुआ है वो तो वहां तक नहीं पहुंचा सकता अपना सिग्नल। तो लाजमी तौर पे आपका डिवाइस ढूंढता रहेगा कि बीटीएस का बीकन है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है नहीं है, क्या करेगा। मेक सेंस? और इन केस ऑफ द थर्ड जनरेशन इट इज कॉल्ड आरएनसी, रेडियो नेटवर्क कंट्रोलर। They go for the satellite.
यही मैं बताना चाहता हूं। लेकिन लोग सिर्फ बिजनेस क्लास वाले, बाकी इकोनॉमिक क्लास वाले सोच भी नहीं सकते, बिकॉज इट इज वेरी एक्सपेंसिव। तो सैटेलाइट यहाँ पे क्या है? तो मतलब एरोप्लेन मोड और वाईफाई ऑन है। नहीं नहीं, ये कह रहे कि एरोप्लेन में भी लोग बैठ के वाईफाई इस्तेमाल करते हैं। तो यस दे डू, बट दे आर यूजिंग देन दी सैटेलाइट, लेकिन वेरी रेयरली। मैंने कम से कम किसी को नहीं देखा